Hello and welcome back to the Medical Gul. In this video, we are going to discuss about hospital pharmacy and its organization. In my previous video, I have already discussed about hospital and its organization. So now let's begin with hospital pharmacy. फार्मेसी जो होती है वो हमारी एक हेल्थ केयर सर्विस होती है जिसमें क्या क्या होता है आर्ट प्रैक्टिस और प्रोफेशन यानी कि कला और उन्हें प्रैक्टिस होती है और उनका काम क्या होता है चूजिंग सबसे पहले वो चूज़ करते हैं प्रिपेयरिंग बनाते हैं स्टोर करते हैं कंपाउंड करते हैं लेबल एंड डिस्पेंस किस किस को मेडिसिन को और मेडिकल डिवाइसेस को और क्या काम करते हैं एडवाइस करते हैं हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स को और पेशेंट्स को ताकि सेफ़ और इफ़ेक्टिव और एफिशिएंट यूज़ हो सके ठीक है So we can say that hospital pharmacy is a healthcare profession that comprises the art, practice and profession of choosing, preparing, storing, compounding, labeling and dispensing medicine and medical devices and advising healthcare professionals and patients on their safe, effective and efficient use. और क्या हम कह सकते हैं कि एक डिपार्टमेंट होता है हॉस्पिटल का इट इज़ अ डिपार्टमेंट ऑफ हॉस्पिटल दैट डील्स विद प्रोक्यूरमेंट स्टोरेज कंपाउंडिंग डिस्पेंसिंग मैन्युफैक्चरिंग testing, packaging and distribution of drugs, or we can say that it is a department, service or domain which is managed under the direction of a professionally competent, legally qualified pharmacist. यानी कि किसके अंडर होता है फार्मासिस्ट के. Now let's talk about functions of hospital pharmacy. Primary function is to manage use of medicines or medications. Then others include dispensing, manufacturing, choosing, preparing, storing, compounding, labeling, dispensing, advising. That all we looked in the definition. Then others include teaching, research, control, purchasing and inventory control, stats and reports, indent generation, advising patient or patient counseling, rational drug use, clinical trials, prescription audit, or we can say that ADR reporting, therapeutic drug monitoring, drug abuse utilization, medicine preparation, filling, labeling, establish and maintain drug information center, discard expired medicines and containers with worn or missing labels, establish a liaison between administrative authorities and doctors, assisting in specialized medicine care such as for cancer patients, providing medicines in emergency situations and keeping records of each supply or dispense. Pharmacy is the connecting link between patients, hospital clinical staff, hospital nursing staff, hospital administration, hospital committee, other hospital departments. These all are directly or indirectly connected to the pharmacy.
नाउ लेट्स सी ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर ऑफ फार्मेसी। तो सबसे पहले इसमें आता है हमारा एडमिनिस्ट्रेटर, उसके अंडर आता है हेड ऑफ फार्मेसी सर्विसेज जो कि यूजुअली एम फार्म का होता है। देन इसमें आते हैं हमारे फर्दर डिस्पेंसिंग केमिस्ट जो कि हमारा डी फार्म से होता है, जो कि हैंडल करता है इन एंड आउट पेशेंट्स को। देन क्लिनिकल फार्मासिस्ट यूजुअली बी फार्म, क्यूसी फार्मासिस्ट एम फार्म, मेडिकल स्टोर फार्मासिस्ट डी और बी फार्म, मैन्युफैक्चरिंग केमिस्ट एम फार्म जो कि मैन्युफैक्चर करता है आईवी फ्लूइड्स, वो होता है बी या फिर एम फार्म। एंड अदर सर्विसेज के लिए होते हैं हमारे पास बी फार्म। Now let's talk about the location of pharmacy. It is usually situated at the ground or the first floor. ठीक है, या तो ये बिल्कुल ग्राउंड फ्लोर पे होगी या फिर फर्स्ट फ्लोर पे होगी, ताकि ये इजीली एसेसिबल हो और हमें सर्विसेज इजीली प्रोवाइड कर सके हम अलग अलग डिपार्टमेंट्स और नर्स स्टेशंस पे। देन एक फार्मेसी होनी चाहिए या तो अंदर या फिर नियर ओपी ब्लॉक। देन ओपी फार्मेसी जो होती है उसमें इनफ स्पेस होनी चाहिए वेटिंग पेशेंट्स के लिए भी, और उनके पास सूटेबल सीटिंग अरेंजमेंट होना चाहिए। देन कंटिन्यूस फ्लो होना चाहिए फार्मेसी में, यानी कि इजीली मूवमेंट हो सके किस किस की, मैन यानी कि जो वहाँ पे लोग हैं, और मटेरियल सामान। जो हमारे स्टॉक मिक्सचर और डिस्पेंसिंग एरिया जो है वो वहाँ पे एडजेसेंट होने चाहिए। देन जो ट्रैफिक होता है अंदर, यानी कि जो लोग हैं और सामान वगैरह है, वो इकोनॉमिकल और फ्लेक्सिबल होना चाहिए। देन जो साइज़ होता है वो ऑर्गेनाइजेशन और ऑपरेशनल पॉलिसीज़ पे डिपेंड करता है। देन सिक्योरिटी स्पेशल होनी चाहिए किसकी, डेंजरस और नारकोटिक ड्रग्स की। देन फायर कंट्रोल के लिए वहाँ पे सिस्टम होना चाहिए, और जो इन्फ्लेमेबल सब्सटेंसेस होते हैं वो भी अलग से स्टोर होता है, और जो कॉरिडोर होता है वहाँ पे इजीली टर्निंग होनी चाहिए व्हील्ड व्हीकल्स के लिए। नाउ अब बात कर लेते हैं लेआउट के बारे में। तो सबसे पहले आता है हमारा एसेप्टिक सेक्शन, उसके साइड में होता है हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, देन रॉ मटेरियल स्टोर और फिनिश प्रोडक्ट्स। देन यहाँ पे आता है हमारा पैसेज, देन उसके बाद आता है एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्शन और डिस्पेंसिंग यहाँ होती है, एंड ओपन स्पेस होती है। देन यूजुअली लेआउट में हमारे 4 चीज़ें आती हैं, स्ट्रक्चरल डिज़ाइन, रिसीविंग एरिया, स्टोरेज एरिया एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एरिया। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द स्टाफ विच इज़ इन्वॉल्व्ड। सो 2 तरीके के होते हैं, प्रोफेशनल एंड नॉन प्रोफेशनल। तो जो प्रोफेशनल वाले होते हैं उसमें आते हैं फार्मासिस्ट, ड्रगिस्ट और जूनियर ड्रगिस्ट, एंड नॉन प्रोफेशनल में आते हैं सेक्रेटरीज, क्लर्क्स एंड क्लीनर्स। ठीक है, तो स्ट्रेंथ ऑफ पेशेंट के हिसाब से जो स्टाफ होता है वो कैसे डिवाइडेड है। बेड स्ट्रेंथ जो कि 50 तक होते हैं उसके लिए हमें 3 फार्मासिस्ट लगते हैं, 100 बेड्स के लिए 5, 200 के लिए 8, 300 के लिए 10 एंड 500 के लिए 15। नाउ लेट्स टॉक अबाउट रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ हॉस्पिटल फार्मासिस्ट। तो इसमें अगर हम जनरल लिखना चाहें तो हमने जो हॉस्पिटल फार्मेसी के फंक्शंस लिखे थे वो हम लिख सकते हैं, लेकिन इन पेशेंट और आउट पेशेंट के लिए अलग से भी दिए गए हैं। इन पेशेंट या फिर इंडोर फार्मासिस्ट होता है, उसका सेंट्रल डिस्पेंसिंग एरिया में क्या काम होता है कि उसे इंश्योर करना पड़ता है कि जो सारी ड्रग्स है वो स्टोर और डिस्पेंस सही से हुई है, चेक करनी पड़ती है एक्यूरेसी, प्रिपेयर डोज की। देन पूरे रिकॉर्ड्स मेंटेन करने पड़ते हैं और बिल बनाना पड़ता है, कोऑर्डिनेट करना पड़ता है बाकी फार्मास्यूटिकल नीड्स ऑफ द पेशेंट केयर के साथ। देन इंश्योर करना पड़ता है कि जो एस्टैब्लिश्ड पॉलिसीज़ और जो प्रोसीजर्स हैं वो फॉलो हो रहे हैं, मेंटेन करना पड़ता है प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस, कम्युनिकेट करना पड़ता है सारे स्टाफ से रिगार्डिंग न्यू डेवलपमेंट्स, कोऑर्डिनेट करनी पड़ती है एक्टिविटीज़ ऑफ द एरिया। देन पेशेंट केयर एरिया में उसे लेजन
करनी पड़ती है, नर्सेस के बीच में रिव्यू करना पड़ता है, ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन को हर पेशेंट के लिए प्रोवाइड करना पड़ता है, इंस्ट्रक्शन और असिस्टेंट जूनियर फार्मासिस्ट को कोऑर्डिनेट करना पड़ता है सारी फार्मास्यूटिकल सर्विस से रनिंग यूनिट लेवल तक के लिए। देन जो हमारा डायरेक्ट पेशेंट केयर एरिया होता है वहाँ पे इनको आइडेंटिफाई करनी पड़ती है कि जो ड्रग हम हॉस्पिटल में ला रहे हैं पेशेंट्स, यानी कि जो पेशेंट्स ला रहे हैं उन ड्रग्स को आइडेंटिफाई करना पड़ता है। देन सारी मेडिकेशन हिस्ट्री लेनी पड़ती है और कम्युनिकेट करनी पड़ती है सारी इंफॉर्मेशन अटेंडिंग फिजिशियन को, असिस्ट करना पड़ता है सिलेक्शन ऑफ ड्रग प्रोडक्ट्स और उनकी आइडेंटिटीज़ के लिए, मॉनिटर करना पड़ता है पेशेंट का टोटल ड्रग थेरेपी किस लिए, ताकि इफ़ेक्टिव हो और साइड इफ़ेक्ट्स, टॉक्सिसिटी, एलर्जिक रिएक्शंस और ड्रग इंटरेक्शंस जो है वो कम हो। देन पार्टिसिपेट करना पड़ता है कार्डियोपल्मोनरी इमरजेंसीज़ के लिए। जो आउटडोर फार्मासिस्ट होते हैं उनका सेंट्रल डिस्पेंसिंग एरिया में क्या काम होता है, उन्हें इंश्योर करना पड़ता है कि प्रॉपर टेक्निक्स यूज़ की गई हैं एक्सटेम्पोरस कंपाउंडिंग के लिए। देन प्रोवाइड करते हैं एडिक्वेट रिकॉर्ड कीपिंग और बिलिंग। देन करेक्टली मेंटेन करते हैं प्रिस्क्रिप्शन फाइल को और कीप करते हैं आउटडोर फार्मेसी को नीट और टाइडी मैनर में। जो पेशेंट केयर एरियाज़ होते हैं वहाँ पे वो इंस्पेक्ट करते हैं मेडिकल एरियाज़ को, आइडेंटिफाई करते हैं ड्रग्स को जो कि पेशेंट लाया है ताकि वो क्लिनिक में लेके आए, और रिकॉर्ड करते हैं उसकी मेडिकेशन हिस्ट्री, मॉनिटर करते हैं ड्रग्स को, काउंसिल करते हैं पेशेंट को, बताते हैं यानी कि काउंसलिंग करते हैं उसकी कि कैसे वो प्रॉपर यूज़ करे मेडिसिन्स का। That's all for now. Thank you. We will soon meet with a new video. Till then, like, share and subscribe.